Okay, friends, once again, welcome back and very good afternoon to everybody. I hope you all are safe, your family members, your relative, your parents, all are safe. And you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, basically your physics is divided into your 12th standard physics is divided into the four parts. Number one, electricity. Number two, magnetism. Number three, optics. And number four, modern physics. The first three chapter, the very first three chapter, which is already we had completed, are based on the electricity. The first two chapter are based on the static electricity, and the third chapter is based on the current electricity. So the electricity part we had already completed, and today we're going to start magnetism. Chapter number 4, 5, 6 and 7. Chapter 4, 5, 6 and 7. All these chapters are based on the magnetism. So now the consecutively the four chapters are based on the magnetism. And then chapter number 9, 10, 11, 9, 8, 9, 10 and 11, 8, 9 and 10, these three chapters, chapter 8, 9 and 10, these three chapters are based on the optics, in which we are going to discuss the wave optics and ray optics. And the chapter number 12, 13 and 14 are based on the modern physics, in which we discuss the nucleus, atom and electronics. So basically this is the overview of your whole 12th standard. So four different branch of the physics you are going to study in the 12th standard: electricity, magnetism, optics and modern physics. From that one part, so I can say 25% of your syllabus is completed. So we had completely completed the electricity part of this chapter, electricity part of the physics. So today we are going to discuss the magnetism. Friends, am I audible to you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay, have you collected the notes correspondent to the theory and numerical? आपने ऑफिस से ये books collect कर लिया? हाँ सर. Yes. Yes, sir. દર્પણ જે લેવાની હતી એ લઈ લીધી. Okay. હવે સર બીજી કોઈ બી નોટ્સ હોય જેમ કે તમે ન્યુમેરિકલ્સ માટેની અગર કોઈ નોટ્સ હોય તો हाँ, તમે अच्छा है. ડે કહી શકો છો કારણ કે અમે બોપલ You થી can- આવીએ છીએ તો You can go any time between 12 to 6 o'clock in the office. એટલે સર લાસ્ટ નોટ્સ કલેક્ટ કરવાની થશે ને? Yeah, this will be the last notes for you. So the theory, for the part 2, the other two notes is going to be correct. But before that, I think offline coaching will going to start. This is the corresponding to the part 1 only, 1 to 7 chapter. So part 2 is still remaining. So, but before that, we are hopefully we will going to meet in the offline session before that. Okay. So right now you need to collect only two books. One is this Darpan book, and second one is the numerical. Actually, numerical books was not published actually still now, so that is why it is being late. So it's just as it is published on the same day we had collected that from the publishers. So there is a very good book from the Lard sir. It is a very interesting way and very good book for the numerical. So it was not published, and because of that it is being late. So now you can collect this book from our institute as well. Okay. So friends, I hope you had collected the books, and if you had not collected, please go to the office and just collect the both the books, Kumar Darpan book, and the second one is a numerical book. Okay. So now without wasting time, we'll start this fourth chapter. I can say a 25% of your content is over. So this is a new branch, but this branch magnetism is linked with the electricity as well. There are some students sitting first time. So Sakir is there? Yes, sir.
And Reshma. Reshma is there? Reshma? Okay. Okay. So she is not turning on the mic, so he's not able to hear. Okay, fine. So friends, magnetism, many concepts are linked with the electricity. Many equations are based on electricity. So Sakir, you had a Sakir. Yes, sir. You had anywhere you had just have a concept of the first and second chapter, or you are blank. Yes, yes. So you had learned the first and second chapter anywhere, or you are No, complete? no, Okay, fine. no. So I'm going to arrange the extra session for the first and second chapter for you very soon. Okay. Yes, yes, sir. So let us start the magnetism, friends. And this is a new branch of physics. Okay. So before 2000 year, people, scientists, human being is aware about the magnetism before 2000 years. In fact, Chinese people are the first people who are using the magnetic needle to find the directions. Greece, in the Greece, the island called Magnesia. In the Greece, island called Magnesia. On that island, people find that there are some substance inside the earth which is attracting the iron metal objects. So they named that particular thing which is inside the earth, which is attracting this iron metal object. They named that part as they named that particular substance as a magneta from the name of the island Magnesia. So magnet is actually came from the name of the island Magnesia, which is in Greece. So from that this word is came. So magnetism, magnetic field, magnet, North Pole, South Pole, that all thing is aware before the from the 2000 years below, 2000 years ago. But at that time, human being and scientists are were not aware about the relation between the electricity and magnetism. Before 200 years, electricity and magnetism are considered to be a different branches of the physics. Before 200 years, magnetism and electricity are considered to be friends, just mute your mic. Okay. So just before the 200 years, magnetism and electricity are considered to be a two different branch of physics, but a physics teacher named Oersted was experimenting in the doing some experiment in the laboratory. So actually, Oersted was doing some experiment corresponding to the electricity, and by mistake, a magnetic needle, a magnetic compass, magnetic needle is placed nearby the experiment. By mistake, not intentionally. So when he performed the experiment, spontaneously he found that whenever the current passes from the wire, the magnetic needle gets deflected. This is a very surprising to it.
this is a very surprising to him, because at that time scientists and people do not know about the relation between the electricity and magnetism. Magnetic needle can deflect only when there is a magnetic field present. So he performing some experiment corresponding to the electricity, but fortunately he found something else. He found that whenever the current passes from the wire, as a magnetic needle gets deflected, is indicating that there must be a magnetic field produced around the wire. So this is the very first step which is going to link the electricity and magnetism. So basically, up till now, the two different branches of the physics called magnetism and electricity, now it is going to be combined, it is going to be merged out, and the new branch called electrodynamics comes into the existence. A combined study of electricity and magnetism is carried out in the electrodynamics or electromagnetism. So Ørsted was the first person who find there is some linking between the electricity and magnetism. He also had experiment many things in the same track. So I'm going to show you some experiment here. Okay, I'm going to share you the figure with what he experiment. Okay. સર એક ડાઉટ છે हाँ बोलो. સર એટલે જ્યારે ઇલેક્ટ્રિક કરંટ પાસ થાય વાયરમાંથી તો આપણે એવું કહી શકીએ કે જે ચાર્જીસ છે એમની પાસે કંઈક મેગ્નેટિક પ્રોપર્ટી હશે એના લીધે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ ક્રિએટ થઈ રહી છે. Okay. So it is a very, very interesting question. Indirectly I can say your question is which cause to produce the magnetic field from the charge. So आपका क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि भाई क्वेश्चन ऐसा है कि मैग्नेटिक फील्ड क्यों जनरेट होता है. So I can give you one more question. Why the electric field is generated? चलो मुझे इसका आंसर दो कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों जनरेट होता है. बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस. नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों जनरेट होता है. चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड. नहीं, हाँ, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा. तनिष आप बराबर बोले. तो एक आप डीप में आप डिस्कस कर ही रहे, तो थोड़ा और मैं आपको बता दूं. तनिष आप फिर से बोलो, क्या बोले आप. चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड. देखो मेरी बात सुनो. इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द टू वे. Number one, by the stationary charge, and number two, changing magnetic field can also cause the electric field. But you will be surprised by knowing that both the electric field having a different characteristic. मेरी बात ध्यान से सुनना. स्टैटिक चार्ज के द्वारा, स्टेशनरी चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है. ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट है. स्टैटिक चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो कंजर्वेटिव है, बट चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो कंजर्वेटिव नहीं है. इफ यू रिमेंबर द प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो हमने ऐसा प्रॉपर्टी पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ स्टेशनरी चार्ज कैन नॉट फॉर्म अ क्लोज लूप. इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ स्टेशनरी चार्जेस कैन नॉट फॉर्म द क्लोज लूप. तो वो क्लोज लूप फॉर्म ना होना वो कंजर्वेटिव फील्ड का कैरेक्टरिस्टिक है. जो फील्ड कंजर्वेटिव होता है उसका फील्ड लाइंस क्लोज लूप फॉर्म करता है, और जिसका फील्ड क्लोज लूप फॉर्म नहीं करता है वो नॉन कंजर्वेटिव है. तो आपको मैं अभी से बता दूं कि स्टेशनरी चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कंजर्वेटिव है, उसका फील्ड लाइंस क्लोज्ड लूप फॉर्म नहीं करता है. बट चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो कंजर्वेटिव नहीं है. उसका
फील्ड लाइंस क्लोज लूप फॉर्म कर सकता है। ये दोनों अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक कंजर्वेटिव है, दूसरा कंजर्वेटिव नहीं है, but it is a different thing. My question is that why does the electric field is produced? In more depth, I can say why does the gravitational field is produced? तो फ्रेंड्स इसका आंसर ऐसा है, इसका आंसर ऐसा है कि ये सब चार्ज के एंड मास के इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक है। अगर कोई मास पार्टिकल है तो उसके आसपास उसका ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस होना वो उसका इंटरनल इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक है। सिमिलरली कोई स्टेशनरी चार्ज है तो उसके द्वारा उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होना वो इसका इंट्रिंसिक, उसका इनहेरेंट, इसका नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक है। सिमिलरली विश्वा, आपका आंसर यही है। सिमिलरली विश्वा, योर आंसर इज, योर क्वेश्चन इज व्हाई डज द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड। तो उसका आंसर ऐसा है कि जब चार्ज मोशन में आता है तो उसका इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। जब चार्ज मोशन में आता है तो नेचुरली उसका एक इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक है, ये वो आपको एक्सेप्ट करना है कि वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। In more depth, I can say it is related to the theory of relativity of Einstein in the quantum mechanics. इसका particular reason quantum mechanics में इसका दिया गया है कि भाई ऐसा तो क्या होता है चार्ज के अंदर कि जब वो मूव होता है तो उसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ऐसा क्या होता है। तो उसके लिए आपको क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ना होगा, आइंस्टाइन का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ना होगा। फिर भी अगर आपको एक नेट पर आप सर्च करो तो एच.सी. वर्मा ने इसका आंसर जैसा मैंने दिया है ना, इसी टाइप का एक आंसर एच.सी. वर्मा ने दिया हुआ है। तो यू कैन जस्ट सर्च द क्वेश्चन व्हाई डज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड। सो इसका आंसर ऐसा है कि आप ये थियरी ऑफ रिलेटिविटी एंड क्वांटम मैकेनिक्स के फंडामेंटल पढ़ोगे तब आपको अच्छे से पता चलेगा। अभी आपको ऐसा सोचना है कि इट इज अ इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द चार्ज इटसेल्फ, ऑफ द मूविंग चार्ज इटसेल्फ। Is it clear? It is understood, Vishwa? हाँ सर, हाँ। Okay. हाँ सर, एक एच.सी. वर्मा में टाइम ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में एक r/c इक्वेशन હતું કે distance travel upon speed of light। એવા તો ઘણા બધા ઇક્વેશન હશે એચ.સી. વર્મા પાસે અને એવા ઘણા બધા વિડિયો હશે, પણ અત્યારે પર્ટિક્યુલરલી વી આર ડિસ્કસિંગ ફોર ધ व्हाई डज द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, दैट इज द बेसिक क्वेश्चन। सो उसका सिंपल आंसर ऐसा है कि वो उसका इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक है, इसके द्वारा वो प्रोड्यूस होता है। इज इट क्लियर टू यू? Okay, so once again coming back to the point, so the thing is થોડુંક લેગ થાય છે। હા, લેગ થાય છે ને? હા, just a minute. મોબાઈલ નો ટાવર પકડી લો, લેગ થાય છે, લેગ દાનો લો આપનો ફોન વિવો વાળો મારો વિવો તમારો just a minute, friends. We'll solve. I just change the network, so it will be automatically. 2-3 मोबाइल मेरे को रखना पड़ता है अभी, इसमें नहीं आया तो इसमें नहीं आया तो इसमें। अभी देखो, अभी कैसा है? अभी क्या मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है आपको? फ्रेंड्स, एम आई ऑडिबल टू यू? यस सर। हाँ सर। ओके, अभी बराबर है, क्लियर है? हाँ सर। ओके, सो हम डिस्कस ऐसा कर रहे थे कि बिफोर 2000 इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर नोन टू अस, आर नोन टू ह्यूमन बीइंग बिफोर 2000 years,
but just before the 200 years, just before the 200 years, Orsted, by the Orsted experiment, we come to know that there is a relation between the electricity and magnetism. So the very first question that is not going to be asked, it is only for your understanding. So what was the Orsted experiment? So आप यहाँ पे एक फिगर है आपके मोबाइल में दिख रहा है क्या फ्रेंड्स? ये आपके मोबाइल में फिगर दिख रहा है? Yes or no? Yes, sir. हाँ सर. ओके, सो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑर्स्टेड ने एक सिंपल एक्सपेरिमेंट किया था कि बैटरी के साथ एक कंडक्टिंग वायर और एक इलेक्ट्रिक रोड, उसके साथ कंडक्टिंग रोड रखा हुआ है, मतलब कोई रेजिस्टिंग वायर है। तो जब करंट पास होता है तो मैग्नेटिक नीडल, जब करंट पास नहीं हो रहा है तो वो मैग्नेटिक नीडल जीरो स्टेट पे है, बट जैसे ही करंट हम पास करेंगे तो देखो सेकंड फिगर में मैग्नेटिक करंट पास किया। In the first figure, there is no current flowing from the wire. So when there is no current flowing from the wire, so magnetic needle was at the rest, it is at the zero state. But when the current passed from the wire, the magnetic needle, which was at the zeroth location initially, gets deflected from its position. So this was the Orsted observation. And he also performed some more experiment. Look at the right side figure. तो वहां पे भी एक फिगर दिया गया है, उसको आप देखो। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या ये दूसरा फिगर आपको दिखाई दे रहा है ABC करके? Yes, sir. अच्छा देखो, यहाँ पे आपको बीच में एक डॉट दिखाई दे रहा है। देखो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के लिए पूछने के लिए नहीं है, ये एक्चुअली हिस्ट्री है। तो एट दैट टाइम क्या हुआ था, ऑर्स्टेड ने क्या किया था, तो उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो क्या ये आपको ये फिगर ए दिख रहा है, उसमें ये बीच में डॉट दिख रहा है क्या आपको? क्या ये डॉट दिख रहा है फ्रेंड्स? Yes, sir. तो ये जो डॉट है ना, वो आउटवर्ड डायरेक्शन शो कर रहा है। फ्रेंड्स याद रखना, ये चैप्टर के अंदर कहीं पे अगर डॉट आ रहा है तो वो आउटवर्ड डायरेक्शन है, एंड कहीं पे अगर क्रॉस आ रहा है तो वो इनवर्ड डायरेक्शन है। दैट इज टू बी रिमेंबर ऑलवेज। डॉट इज इंडिकेटिंग आउटवर्ड डायरेक्शन एंड क्रॉस इज इंडिकेटिंग द इनवर्ड डायरेक्शन। इट मे बी अ करंट, इट मे बी अ मैग्नेटिक फील्ड। वो करंट के लिए भी हो सकता है, वो मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी हो सकता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम जो डॉट है ना इन द फिगर ए, दैट इज इंडिकेटिंग द करंट। इट इज अ वेरी लॉन्ग वायर। वो एक वायर है, वो स्क्रीन में से, आपके मोबाइल के स्क्रीन में से वो आपके विजन के तरफ, मतलब आपकी आंख के तरफ, वो परपेंडिकुलरली, स्क्रीन से परपेंडिकुलरली उसमें से करंट बाहर निकल रहा है। डॉट इज इंडिकेटिंग द करंट इज फ्लोइंग आउटवर्ड। और इसके बाद आजू बाजू जो डिजाइन किया हुआ है वो डिजाइन नहीं है, वो मैग्नेटिक नीडल पड़ा हुआ है। तो मैग्नेटिक नीडल को अलग अलग लोकेशन पे रखते हैं, 1 2 3, तो वो मतलब पूरा वो सर्कुलर हिसाब से वो अरेंज होता है। अलग अलग लोकेशन पे अगर मैग्नेटिक नीडल हम प्लेस करते हैं आजू बाजू, तो वो इस हिसाब से सर्कुलर फॉर्म में, शेप में वो कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो है वो नॉर्थ पोल है, और दूसरा जो है वो साउथ है। नॉर्थ साउथ ऐसा है मैग्नेटिक नीडल का। तो कोई मुझे, और दूसरी बात, वो बाजू के फिगर में देखो तो वहां पे क्रॉस दिया हुआ है। तो कोई मुझे बताएगा कि फर्स्ट एंड सेकंड फिगर में डिफरेंस क्या है? एनीबडी फ्रॉम योर साइड? साक्षी है वहां पे, साक्षी चंद, साक्षी। Yes, sir. चलो आप बताओ, ये फिगर 1 एंड फिगर 2 में क्या डिफरेंस है? Inward है. अच्छा, फिगर 2 में एक वायर जो है वो इनवर्ड डायरेक्शन में है। अच्छा, तो और क्या डिफरेंस है? सर जोशी बोलो। सर नॉर्थ અને સાઉથ પોલ ઓપોઝિટ થઈ જાય છે. Exactly. So in the second figure you can see that south north is reversed। देखो साउथ एंड नॉर्थ का जो पोजीशन है वो रिवर्स हो रहा है। देखो
आपको कोई एक मैग्नेटिक नीडल को देख लो तो पता चल जाएगा, इसको और इसको कंपेयर कर दो, ये दोनों को कंपेयर कर दो तो पता चल जाएगा आपको साउथ एंड नॉर्थ का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो कोई मुझे बताएगा कि इसमें से 3 कंक्लूजन मुझे मिलते हैं। कोई मुझे बताएगा कौन से 3, चलो 2 कंक्लूजन यहाँ पे मिलते हैं, कोई मुझे बताएगा कौन से 2 कंक्लूजन यहाँ पे मिलते हैं? तो इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा वी गेट द 2 सर कंक्लूजन्स। बोलो कोई बताएगा? करंट की फील्ड आउटवर्ड होती है जब मैग्नेटिक फील्ड साउथ नॉर्थ होती है। देखो पहली बात के करंट की फील्ड ऐसा नहीं बोलना चाहिए, करंट का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ करंट का डायरेक्शन आप बोलो। अच्छा हाँ। चलो यहाँ पे कंक्लूजन नंबर 1 कि कोई भी करंट कैरिंग वायर है, करंट कैरिंग वायर, तो उसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो सर्कुलर, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो सर्कुलर है। दैट इज द फर्स्ट कंक्लूजन, बिकॉज आप जब मैग्नेटिक नीडल प्लेस करते हो तो उसका शेप सर्कुलर फॉर्म में आता है, उसको सारे को कनेक्ट करते हैं ना। तो वेरी फर्स्ट कंक्लूजन कि वायर के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके फील्ड लाइन सर्कुलर होती है, नंबर 1। एंड नंबर 2, if you change the direction of current, if you reverse the direction of current, then the direction of magnetic field is also gets reversed, because जो नॉर्थ था वो साउथ हो गया, साउथ था वो नॉर्थ हो गया। तो मतलब क्या हुआ कि अगर आप करंट का डायरेक्शन चेंज करते हो, अपोजिट करते हो, आउटवर्ड के बदले इनवर्ड करते हो, तो आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका डायरेक्शन भी अपोजिट हो जाएगा। और एक तीसरा एक्सपेरिमेंट है, ये फिगर सी आपने देखा, देखो तो आपके मोबाइल में, कैन यू सी द फिगर सी, फिगर 3, ये थर्ड वन फिगर सी आप देख सकते हो। यस सर। तो ये किसका फिगर है? आपने शायद 8th 9th 10th स्टैंडर्ड में एक्सपेरिमेंट किया होगा कि कोई आपने मतलब ये आयन का ओर लिया होगा और कोई मतलब हार्ड पेपर पे उसको रख के उसके बीच में से एक वायर पास किया होगा और उसमें से करंट पास किया होगा शायद। आई डोंट नो वेदर यू हैड परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट और नॉट। तो उसमें क्या होता है कि हार्ड बोर्ड होता है, हार्ड बोर्ड के ऊपर आयन ओर का मतलब होता है सारे। हाँ, और उसमें से ये जो बीच में जो डॉट दिख रहा है ना, आपने आपको बीच में जो डॉट दिख रहा है वो डॉट नहीं है, वो क्या है? वो करंट कैरिंग वायर है। तो आप देख सकते हो कि जो आयन का जो मतलब ये जो और होता है तो उसका जो अरेंजमेंट है वो सर्कुलर शेप में हो जाता है सारे उसके आसपास। किसी ने ये एक्सपेरिमेंट किया है? हाँ सर। तो कुछ स्कूल के अंदर ये एक्सपेरिमेंट करवाते हैं। तो वंस अगेन इट विल गेट द सेम कंक्लूजन दैट करंट कैरिंग वायर के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो कैसे होती है? सर्कुलर। सर्कुलर फॉर्म में होती है। तो उसका दिस इज द कंक्लूजन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट्स। तो फाइनली आई कैन से द 3 conclusions. Number 1, whenever the current passes from the wire, a magnetic field produces, that is number 1. Number 2, वायर के आसपास, स्ट्रेट वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है वो सर्कुलर होती है। एंड नंबर 3, if you change the direction of electric current, then the direction of magnetic field also gets reversed. So these are the 3 basic conclusions we are able to obtain. Apart from that हम अब ऐसा कह सकते हैं कि स्टेशनरी चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, बट जो मूविंग चार्ज है, अगर चार्ज को मोशन में लाते हैं तो वो along with the electric field it can produce the मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई आपको ऐसा पूछता है कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड, कोई अगर ऐसा पूछता है कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड, तो आप बताओगे कि मास। अगर कोई आपको ऐसा पूछता है कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड, तो आप बताओगे कि स्टेशनरी चार्ज। अपार्ट फ्रॉम द स्टेशनरी चार्ज, आज तनिष ने बताया, तनिष को पता था, हम वो पढ़ने वाले हैं 6th चैप्टर में कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन आल्सो प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड। बट अभी तक जो हमको पता है वो ये है कि
हु इज द कोज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप बताओगे कि चार्ज। एंड नंबर 3, व्हाट इज द कोज, व्हाट इज द सोर्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, तो आप क्या बताओगे अभी, यू कैन से इलेक्ट्रिक करंट, मूविंग चार्ज। हाँ, इलेक्ट्रिक करंट और मूविंग चार्ज। सो मूविंग चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट इज द source of the magnetic field. So this is the history. So we had cleared some, we also got some conclusion here. So question number 1, question number 2 and question number 3, all these 3 questions are for the history. So we had discussed these questions. Is it okay friends? Question number 1 में ऐसा है कि भाई ऑर्स्टेड ने क्या ऑब्जर्वेशन किया था। क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसा है कि भाई स्टेट द साइंटिस्ट रिसर्च अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, तो अलग अलग साइंटिस्ट ने क्या क्या इन्वेंट किया था, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में क्या क्या अलग अलग साइंटिस्ट ने क्या किया था, उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, मैं कुछ और आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की ट्राई करता हूँ। फ्रेंड्स, ये जो ऑर्स्टेड का जो ऑब्जर्वेशन है ना, वो है तो बहुत ही सिंपल, बट उसके जो इफेक्ट्स है, उसके द्वारा जो रिजल्ट मिला फिजिक्स के अंदर, वो रिवोल्यूशनरी है। मैं बताऊं क्यों? बिकॉज देखो, मैक्सवेल ने जो एक्सपेरिमेंट किया, उसके द्वारा साइंटिस्टों को, ह्यूमन बीइंग को ऐसा पता चला कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के बीच में कुछ रिलेशन है। उसके बाद मैक्सवेल नाम का साइंटिस्ट था, उसने इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म को कंसेप्ट को मिला के कुछ इक्वेशंस निकाले, और अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल इक्वेशन, he theoretically, only theoretically, not experimentally, I repeat, मैक्सवेल ने इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के कुछ कंसेप्ट्स को मिला के थियोरिटिकली ऐसा इन्वेंट किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होने चाहिए। एंड उसने थियोरिटिकली ऐसा भी प्रूव किया, थियोरिटिकली ऐसा भी प्रूव किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर है तो उसका वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो ये सारा कुछ मैक्सवेल ने थ्योरेटिकली किया था, बट द रिजल्ट वाज सरप्राइजिंग। मैक्सवेल ने थ्योरेटिकली ऐसा प्रूव किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जैसा कुछ होना चाहिए, और उसका वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड उसने प्रूव किया थ्योरेटिकली। बट एट दैट टाइम इट वाज वेरी वेल नोन that the velocity of light is also 3 × 10⁸ meter per second. So now the human being and scientists were come to know that the radiation came from the sun. सन में से जो रेडिएशन आता है वो कोई और नहीं है, बट वो क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। उसके बाद हर्ट्ज वाज द पर्सन जिसने आर्टिफिशियली लेबोरेटरी के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट किए। We are taking the unit of the frequency as the hertz, as you know, but Hertz was the first person who had produced the electromagnetic wave in the laboratory. सन में से तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आते हैं, वो तो ऑब्वियस चीज है, वो नेचुरल चीज है, बट आर्टिफिशियली लेबोरेटरी के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करने वाला हर्ट्ज वाज द वेरी फर्स्ट पर्सन। उसके बाद अवर इंडियन साइंटिस्ट जगदीश चंद्र बोस एज वेल एज मार्कोनी, सो उसने भी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में कुछ काम किया। मार्कोनी ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जा सकता है, प्रोपोगेट कर सकते हैं, ऐसा प्रूव किया। उसने मैग्नेटिक वेव को प्रोपोगेट भी किया एक प्लेस से दूसरे प्लेस। तो फ्रेंड्स, आज हम इंटरनेट कनेक्शन, मोबाइल कम्युनिकेशन, टेलीविजन कम्युनिकेशन, रेडियो कम्युनिकेशन, ये सारे जो कम्युनिकेशन अभी जो हमारे यहाँ पे चलते हैं, हम जो कम्युनिकेशन का यूज करते हैं, उसमें वही तो होता है, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ट्रांसमिशन ही तो होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। तो फ्रेंड्स, आज हम जो मोबाइल कम्युनिकेशन, ये जो इंटरनेट डेटा ट्रांसफर करते हैं इंटरनेट के द्वारा, टेलीविजन सिग्नल्स रिसीव करता है, मोबाइल रेडियो मिर्ची, रेडियो सिटी, वाटरफन एटसेट्रा जो हम सुनते हैं, वो सारा कुछ कम्युनिकेशन, मतलब जितना भी कम्युनिकेशन है, वो ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के वजह से ही है। तो मतलब आपको पता चला कि ये था कहाँ से, ये हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट हुआ? हिस्ट्री स्टार्ट हुआ था ऑर्स्टेड ऑब्जर्वेशन में से, और ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप, मतलब ये जो ऐसा हम कह सकते हैं कि द बेस ऑफ द होल कम्युनिकेशन
The base of the whole communication was a Oersted observation. तो वैसे है बहुत सिंपल सी चीज, पर उसने ह्यूमन बीइंग का मतलब पूरा ये रिवॉल्यूशन कर दिया, मतलब उसका जीवन को रिवॉल्यूशन कर दिया. सो दैट वाज द थिंग. उसमें से कुछ चीज यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, कुछ मैंने आपको एडिशनल बताया, बट दैट वाज द थिंग व्हाई द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज important for our life, why this whole thing is important for us. So क्वेश्चन नंबर 3 में ऑस्टेड ने और कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, वो सब बताया हुआ है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर होता है, अगर करंट का डायरेक्शन चेंज करते हो तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो उसमें खाली बताया गया है कि हम यहाँ पे कुछ नोटेशन यूज करेंगे, कुछ सिंबल यूज करेंगे. तो डॉट सिंबल किसके लिए यूज करना है? बोलो फ्रेंड्स, डॉट सिंबल किसके लिए यूज करना है? आउटवर्ड करंट. हाँ, आउटवर्ड के लिए डॉट यूज करेंगे. तो ये डॉट जो है वो, आई रिपीट, एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ कि अगर नॉट ओनली द करंट, फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो, इट मे बी अ करंट, इट मे बी अ मैग्नेटिक फील्ड. मतलब आउटवर्ड, डॉट मतलब आउटवर्ड, क्रॉस मतलब इनवर्ड. तो ये 4th क्वेश्चन में वही चीज लिखा हुआ है कि भाई इस चैप्टर में हम इस टाइप के नोटेशन यहाँ पे यूज करेंगे. So 4th question is also not for the preparation, it is only for the information. Question number 5, what is the source of the electric and magnetic field? तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के सोर्स जो हमने डिस्कस कर लिया कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सोर्स है वो पॉइंट चार्ज है. चार्ज इज द सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड सिमिलरली द सोर्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज अ मूविंग चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट. तो लास्ट में वही लिखा है, देखो, लुक एट दिस लास्ट पैराग्राफ. तो लुक एट जस्ट द लास्ट पैराग्राफ. A static charge produces the electric field and a moving charge produces the electric and the magnetic field, and magnetic field is denoted by the vector B, is the function of vector R. So stationary charge के द्वारा electric field produce होता है, मूविंग चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस होते हैं. अब आपके जहन में ये क्वेश्चन होगा कि सर ये वापस से मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस क्यों होता है? तो मैंने उसका आंसर पहले से ही दे दिया है. उसका आंसर ऐसा है कि इट इज अ नेचुरल, इट इज अ इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द चार्ज. एंड फिर भी अगर आपको उसका डिटेल में रीजन चाहिए तो आपको क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ना पड़ेगा, आइंस्टाइन का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ना पड़ेगा. So till now you have to remember that this is a, जैसे मास ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करता है वो उसका नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक है, इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक है. सिमिलरली स्टेशनरी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है एंड मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है. वो सारे उसके नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक है, ऐसा अभी मान के आपको चलना पड़ेगा. ओके सर वो क्या है? कौन सा? तो ये स्विमिंग वाला कुछ है? वो आप देखना, वो एक्चुअल में है ना, ये नॉर्थ एंड साउथ का कंसेप्ट को ऐसे स्विमिंग से भी हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं. फॉरवर्ड डायरेक्शन को नॉर्थ अज्यूम कर सकते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन को साउथ अज्यूम कर सकते हैं. तो फ्लेमिंग ने मतलब ये आई थिंक मोस्टली इट वाज फ्लेमिंग्स लॉ, अच्छा एम्पियर स्विमिंग रूल. सो एम्पियर, इट इज अ एम्पियर स्विमिंग रूल. तो ये आप ये स्विमिंग देख के, आपको फिगर में देख के आपको पूछने का इच्छा हुआ, बट एक्चुअली ये उसमें ऐसा नहीं है कि ये उसमें कुछ भी नहीं है. एम्पियर ने ये रूल दिया था, तो उसने ये मैग्नेटिक नीडल जो नॉर्थ एंड साउथ है ना, उसके बदले उसने ये कोई पर्सन स्विम कर रहा है ऐसा एग्जांपल देके एक रूल बनाया था, और इसमें कुछ भी नहीं है. ये जस्ट रीड दिस वन, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, यू कैन रीड इट आउट. ओके, एक बार. हाँ बोलो. मैग्नेटिक फील्ड में बी एज अ फंक्शन ऑफ आर કેમ યુઝ કર્યું છે? जैसे देखो, आपको पता है हमने फर्स्ट चैप्टर में अलग अलग 9 इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस किए थे. पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड, क्वाड्रुपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरी लॉन्ग लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन का इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन का इलेक्ट्रिक फील्ड, स्फेरिकल शेल, इनसाइड आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड,
स्फीयर का इनसाइड आउटसाइड इलेक्ट्रिक, मतलब ऐसे 9 डिफरेंट केसेस हमने डिस्कस किए थे इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो एक ही केस ऐसा था, ओनली वन केस वाज देयर इन विच द इलेक्ट्रिक फील्ड वाज नॉट डिपेंड ऑन द पोजीशन। एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा था कि जो डिस्टेंस के साथ वेराई नहीं हो रहा था। कोई मुझे बता सकता है कौन सा? इनफाइनाइटली लॉन्ग, नहीं शीट। हाँ, वेरी लार्ज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो वेराई नहीं हो रहा था पोजीशन के साथ। बाकी जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड थे वो पोजीशन के साथ वेराई हो रहे थे। सिमिलरली इस चैप्टर में भी हम डिफरेंट टाइप ऑफ करंट सिस्टम, इस चैप्टर में भी हम डिफरेंट टाइप ऑफ करंट सिस्टम के मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे एंड वी विल सी दैट ऑल द मैग्नेटिक फील्ड विल बी वेराई विद द पोजीशन। तो वो पोजीशन के साथ वेराई हो रहा है वो शो करने के लिए बी इज द फंक्शन ऑफ आर लिखा हुआ है। इज दैट क्लियर? हाँ सर। ओके फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, यहाँ पे एडिशनली दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना वो एक्स्ट्रा है, वो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, इससे उल्टा क्वेश्चन है। टेक्स्ट बुक के अंदर इससे उल्टा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा पूछा हुआ कि डिराइव द फोर्स ऑन द मूविंग चार्ज इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद द वेलोसिटी वी। और यहाँ पे ये अज्यूम करके चले हैं कि कोई करंट कैरिंग लूप है, करंट कैरिंग सेगमेंट है, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है वो आई डी एल क्रॉस बी है और उसके द्वारा इसके द्वारा चार्ज का फोर्स फाइंड किया हुआ है। तो ये एक्सेप्ट किया हुआ है और उसके द्वारा चार्ज का फोर्स क्यू वी क्रॉस बी प्रूव किया हुआ है। बट हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर उल्टा है कि ये फोर्स जो है ना वो हमको एक्सेप्ट कर लेना है और उसके द्वारा इसको प्रूव करना है। वो अभी थोड़ी देर में आएगा वो थियोरी। मतलब दोनों, मैं एक थियोरी आपको समझा दूं तो दूसरा उसका उल्टा ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा। तो अभी मैं क्वेश्चन टेम्पररी क्वेश्चन नंबर 6 को भी मैं स्किप कर रहा हूँ। मैं क्वेश्चन नंबर 8 या 9 करवा दूंगा तो उसके ऊपर से ऑटोमेटिकली आपको ये क्वेश्चन आ जाए, ऑटोमेटिकली यू विल बी एबल टू अंडरस्टूड द क्वेश्चन नंबर 6। अभी मैं उसको स्किप कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स अभी डायरेक्टली हम एक्सेप्ट करेंगे, हम ये मान लेंगे, साइंटिस्ट लोगों ने वो प्रूव किया होगा, हम वो चीज एक्सेप्ट कर लेंगे कि मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है, वो अभी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो अभी क्वेश्चन ऐसा है कि गिव द फीचर्स, क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन यू नीड टू प्रिपेयर एज अ 2 मार्क। आपको ये क्वेश्चन एज अ 2 मार्क प्रिपेयर करना है। आगे के जितने भी क्वेश्चन है दैट इज ओनली फॉर द अंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन यू नीड टू प्रिपेयर एज अ 2 मार्क्स। क्वेश्चन इज राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स एंड डिस्कस इट्स फीचर्स और डिस्कस इट्स कैरेक्टरिस्टिक, उसके कैरेक्टरिस्टिक आपको एक्सप्लेन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 कुछ मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना। तो आपका चैप्टर अभी ऐसा मैं कह सकता हूँ कि अब एक्चुअल में आपका चैप्टर स्टार्ट हो गया। अभी तक सारे हिस्ट्री थे, कुछ इंफॉर्मेशन आप 8-9 स्टैंडर्ड में पढ़ चुके थे, कुछ नया था। तो अभी जो क्वेश्चन है वो मैग्नेटिक फोर्स के बारे में है। तो फ्रेंड्स पहले मैं आपको ये बता दूं कि कोई चार्ज अगर मूव कर रहा है, कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा हुआ है, तो मुझे ये बता दो कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? F by Q. Electric field is equals to F by Q. So from that I can say the electric force is equals to can I say QE? अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पड़ा हुआ है, अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पड़ा हुआ है, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स QE जितना लगेगा? इज दैट? Yes sir. ओके। तो अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। तो सिमिलरली अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, अगर कोई चार्ज दूसरे खुद के नहीं, देखो याद ऑलवेज ये आपको याद रखना है कि कोई भी चार्ज उसका खुद का तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है,
बट वो खुद के इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा खुद के ऊपर फोर्स प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। जैसे मैं आपको बताऊं, ये मास पार्टिकल 1 है, ये मास पार्टिकल 2 है, तो ये मास पार्टिकल 1 का खुद का एक ग्रेविटेशनल फील्ड होगा और मास पार्टिकल 2 का भी खुद का ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। बट होता क्या है कि मास पार्टिकल 1 के ऊपर जो फोर्स लगता है ना, ये दूसरे मास पार्टिकल के ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा, फील्ड के द्वारा लगता है। मतलब कोई भी मास पार्टिकल खुद के फील्ड के द्वारा खुद के ऊपर फोर्स प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। ऐसा क्यों? बिकॉज वेन एवर ओनली वन मास पार्टिकल इज देयर, एक ही मास पार्टिकल है तो उसका ग्रेविटेशनल फील्ड तो होगा उसके आसपास, बट उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। मतलब क्या हुआ कि वो खुद के ग्रेविटेशनल फील्ड के द्वारा फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है। बट जैसे ही उसके बाजू में कोई दूसरा मास पार्टिकल आएगा, जैसे यहाँ पे फोर्स 0 था, कोई फोर्स लग नहीं रहा था, बट जैसे ही कोई दूसरा मास पार्टिकल आता है पिक्चर में, तो वो फोर्स लगेगा। मतलब लगेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि वो फोर्स किसके द्वारा प्रोड्यूस हुआ होगा, तो वो दूसरे मास पार्टिकल के फील्ड के द्वारा। सिमिलरली कोई मूविंग चार्ज है, कोई चार्ज अगर मूव कर रहा है कुछ वेलोसिटी के साथ, मतलब वो करंट प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसका खुद का कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा। बट हमेशा याद रखना, वो खुद के मैग्नेटिक फील्ड, वो खुद के मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा खुद के ऊपर फोर्स प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। अगर कोई दूसरा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, तो when the charge q is moving with the velocity v in some external magnetic field b, then the magnetic force produced on the charge can be given by q v cross b। आपको ये चीज याद रखना है, एक्सेप्ट करना है, आपको एक्सेप्ट करना है। तो अगर कोई चार्ज q चार्ज v वेलोसिटी के साथ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव हो रहा है, वो खुद का मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, याद रखना हमेशा। ये जो बी है ना, वो कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। जैसे यहाँ पे F इज इक्वल टू क्यू जो था ना, उसमें भी जो ई था वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था, खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था। तो व्हेन द चार्ज क्यू इज मूविंग वेलोसिटी v in some external magnetic field b, then it will experience the force q into v cross b. So this is what is the formula of a magnetic force, that is you need to remember. तो ये मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला है। कोई मूविंग चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव हो रहा है तो उसके ऊपर इतना फोर्स लगेगा, ये आपको एक्सेप्ट करना है। चलो अब क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर मैग्नीट्यूड वाइज सोचते हैं, अगर मैग्नीट्यूड वाइज सोचते हैं, तो क्या आपको फ्रेंड्स ये पता है ना क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या होता है? कोई बताएगा? ए बी साइन थीटा। ए बी साइन मैग्नीट्यूड ये होता है। और कोई मुझे डायरेक्शन के बारे में बताएगा? कोई क्रॉस का डायरेक्शन कैसे मिलता है? tan alpha equals to b sin theta upon a plus b cos theta। अरे बापू, क्या यार, क्या बोल रहे हो आप? कहाँ से कहाँ जा रहे हो? ओह शिट। ये हाँ जो तो हाँ सर, क्रॉस प्रोडक्ट में परपेंडिकुलर अब डायरेक्शन। है, आप जो बोल रहे थे ना वो तो पैरेललोग्राम का रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन के बारे में था। इज दैट क्लियर? हाँ सर, वहाँ पे b cos थीटा की जगह b sin थीटा नहीं होगा? हाँ, न्यूमरेटर में b sin थीटा एंड डिनोमिनेटर में b cos थीटा। परफेक्ट। न्यूमरेटर में b sin थीटा होता है, डिनोमिनेटर में b cos थीटा होता है। ओके फाइन। बट ये तो अलग चीज है, और मैं ये बात भी यहाँ बता रहा हूँ कि क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन कैसे फाइंड करता है, तो ये फाइंड करते हैं बाय द राइट हैंड थंब रूल। हैंड थंब भी कह सकते हो, स्क्रू भी कह सकते हो, बट वो बराबर है। बट इट इज ऑलवेज, कोई बताएगा मैं क्या लिखने वाला हूं? परपेंडिकुलर टू द प्लेन फॉर्म बाय द टू वेक्टर। परफेक्ट, परपेंडिकुलर टू द प्लेन formed by vector A and vector B। सो ये क्रॉस प्रोडक्ट का बेसिक कंसेप्ट था।
कोई भी क्रॉस, चाहे कहीं पे भी, फिजिक्स के अंदर 12th स्टैंडर्ड में बहुत सारी जगह पे ये क्रॉस प्रोडक्ट आने वाला है। तो whenever you find the cross product, it is a by default rule. कोई भी क्रॉस प्रोडक्ट है तो उसका डायरेक्शन क्या होता है कि वो you can find it by the right hand thumb rule या right hand screw rule, but it is always perpendicular to the plane formed by vector v and vector a and vector b. Here it is a vector v and vector b. तो फ्रेंड्स इसका जो मैग्नीट्यूड यहाँ पे आएगा वो ये आएगा क्यू वी बी साइन थीटा। अब ये थीटा किन दोनों के बीच का एंगल है, where theta is the angle between vector A and vector B. यहाँ पे वेक्टर A नहीं है, यहाँ पे कौन सा वेक्टर है, B, या वेलोसिटी वेक्टर। तो फ्रेंड्स ये मैग्नेटिक फोर्स की बात है। तो मुझे ये बताओ सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक कि मैग्नेटिक फोर्स अगर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज के बारे में सोचते हैं तो उसके डायरेक्शन के बारे में क्या कह सकते हैं। अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड पड़ा हुआ है कहीं पे भी और हम वहां पे एक बार पॉजिटिव चार्ज को मूव करवा रहे हैं और दूसरी बार नेगेटिव चार्ज को हम मूव करवा रहे हैं, तो मुझे ये बताओ कि दोनों में फर्क क्या पड़ेगा। सर फोर्स का डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। परफेक्ट आंसर, फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट आएगा, बिकॉज अगर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे क्यू का वैल्यू आप पॉजिटिव लेंगे और अगर नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे आप क्यू का वैल्यू नेगेटिव प्लेस करोगे। तो नेगेटिव अगर प्लेस करते तो फोर्स का डायरेक्शन भी आगे नेगेटिव आ जाएगा। मतलब द वेरी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक दैट फॉर द पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज ऑन द सेम मैग्नेटिक फील्ड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स आर अपोजिट। इज दैट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? यस सर। नंबर 2, फोर्स इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द एंगल। यहाँ पे आप देख सकते हो कि फोर्स एंगल के ऊपर भी डिपेंडेंट है, थीटा के ऊपर डिपेंडेंट है। एंड व्हेन द थीटा बिकम्स 90 द फोर्स इज अ मैक्सिमम एंड द मैक्सिमम फोर्स इज अ क्यू वी बी। बट इफ द थीटा इज इक्वल टू 0 और 180, मतलब वेक्टर वी वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, मतलब देखो सपोज के इस तरह से कोई जगह पे मैग्नेटिक फील्ड हमने प्रोवाइड किया हुआ है, बाय एनी हाउ वी हैड प्रोड्यूस्ड द मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस, एंड उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज उसी डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तो क्या उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, यस और नो? लगेगा या नहीं नो लगेगा? सर। नहीं लगेगा, नो सर। एंगल 0 है एंड साइन 0 0 होता है, फोर्स 0 हो जाएगा क्यू, बिकॉज साइन 0 एंड साइन 180 दोनों 0 होता है। तो अगर चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल अगर मूव हो रहा है, चार्ज मोशन में है बट अगर एंटी पैरेलल या पैरेलल मूव हो रहा है तो मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा। अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई स्टेशनरी चार्ज अगर मैं रखता हूँ, स्टेशनरी चार्ज, तो भी फोर्स 0 होगा। अगर मैं स्टेशनरी चार्ज रखता हूं तो भी फोर्स 0 होगा, बिकॉज फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, क्यू वी बी साइन थीटा। अगर वेलोसिटी 0 है तो भी उसका फोर्स 0 होगा। क्या ये बात आपको समझ में आया? तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई स्टेशनरी चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर मैं स्टेशनरी चार्ज प्लेस करता हूं तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। कितना लगेगा? क्यू जितना लगेगा। बट अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज को प्लेस करता हूं स्टेशनरी, तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा? 0। 0 लगेगा। मतलब स्टेशनरी चार्ज डज नॉट एक्सपीरियंसेस एनी मैग्नेटिक फोर्स। क्या ये आपको समझ में आया? यस सर। स्टेशनरी चार्ज के ऊपर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, बिकॉज उसका फॉर्मूला में वेलोसिटी 0 होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस होल थिंग, देखो ये बहुत ही, अब जो मैं बोलने वाला हूं दैट इज अ वेरी 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 क्रूशियल, ये बहुत ही समझने की जरूरत है। अब ये जो मैग्नेटिक फोर्स जो है ना, उसका डायरेक्शन कौन सा होगा? व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स? तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला द मैग्नेटिक फोर्स मस्ट बी इन द डायरेक्शन ऑफ V क्रॉस B। फॉर द पॉजिटिव चार्ज द मैग्नेटिक फोर्स इज ऑन द डायरेक्शन ऑफ V क्रॉस B। तो फ्रेंड्स ये मैग्नेटिक फोर्स जो है ना is in the direction of V क्रॉस B। तो फ्रेंड्स ये तो चीज आपको पता चल गई कि भाई अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला द मैग्नेटिक फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ V क्रॉस B। बट आपको ये पता होगा कि अकॉर्डिंग टू द क्रॉस प्रोडक्ट
अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ क्रॉस प्रोडक्ट का जो कैरेक्टरिस्टिक है, आपको पता है कि A क्रॉस B जो होता है वो इट इज अ परपेंडिकुलर टू द A एज वेल एज परपेंडिकुलर टू द B फैक्टर एज वेल। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स का जो डायरेक्शन है वो V क्रॉस B के डायरेक्शन में है, बट V क्रॉस B जो होता है वो V से भी परपेंडिकुलर होता है और B से भी परपेंडिकुलर, बिकॉज इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन फॉर्म्ड बाय द बोथ द वेक्टर्स। क्रॉस प्रोडक्ट का जो डायरेक्शन होता है वो दोनों वेक्टर से परपेंडिकुलर इसलिए होता है बिकॉज इट इज अ परपेंडिकुलर टू द होल प्लेन फॉर्म्ड बाय द A एंड B, दोनों के प्लेन का परपेंडिकुलर। मतलब ऐसा होता है कि V क्रॉस B जो है ना वो V से भी परपेंडिकुलर है एंड इट इज आल्सो परपेंडिकुलर टू द वेक्टर B एज वेल। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगेगा। चलो अब मुझे सोच के बताओ कि जब कोई फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगता है तो क्या होता है, कोई बताएगा 11th के फंडामेंटल में से? डायरेक्शन चेंज होती। हाँ, तो क्या होगा फ्रेंड्स, आपको बता दूं, डायरेक्शन चेंज होगा ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए ओनली द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ओनली द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी गेट्स चेंज्ड। हाँ, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होती। हाँ, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। अगर 11th के फंड, मैं एक बार फटाफट आपको बता दूं, अगर वेलोसिटी पैरेलल टू द एक्सेलरेशन है, मतलब अगर कोई फोर्स या एक्सेलरेशन, फटाफट मैं आपको 11 के कंसेप्ट समझा दूं जिसका 11 क्लियर नहीं है। अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के पैरेलल है, अगर मैं एक्सेलरेशन माने फोर्स, F इज टू m है, फोर्स का डायरेक्शन एंड एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम ही होता है। तो अगर मैं फोर्स या एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में अगर लगाता हूं तो उसका मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, वेलोसिटी का मतलब पार्टिकल के वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा बट डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। अगर मैं एक्सेलरेशन को वेलोसिटी के एंटी पैरेलल लगाता हूं, अपोजिट डायरेक्शन में, तो ऑब्वियसली कोई ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप फोर्स लगाते हो तो क्या होगा, उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज होगा। बट वंस अगेन डायरेक्शन जो है ना वो चेंज नहीं होगा। अगर आप एक्सेलरेशन को परपेंडिकुलर लगाते हो, मतलब आप उसके पैरेलल भी नहीं लगाते, उसके एंटी पैरेलल भी नहीं लगाते, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज भी नहीं होगा, डिक्रीज भी नहीं होगा। आप परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन लगाते हो, मतलब एक्सेलरेशन तो लगाते हो ना, एंड एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो मतलब एक्सेलरेशन आपने प्रोवाइड किया तो कुछ ना कुछ तो होगा, वेलोसिटी में चेंज तो होगा, बिकॉज एक्सेलरेशन का डेफिनेशन ही वही है। तो अगर आप एक्सेलरेशन को वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगाते हो तो उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज भी नहीं होगा, डिक्रीज भी नहीं होगा, मतलब मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट रहेगा, मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट रहेगा बिकॉज वो एंटी पैरेलल या पैरेलल नहीं है। बट कुछ तो होगा ना, बिकॉज एक्सेलरेशन का मतलब ही ऐसा हुआ कि वेलोसिटी का चेंज। तो क्या होगा फ्रेंड्स, डायरेक्शन चेंज, डायरेक्शन चेंज होगा। तो यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक फोर्स है वो पर्टिकुलर ऐसा फोर्स है कि जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर अप्लाई हो रहा है। एक ये बात खत्म करते हैं। अब अगर एक्सेलरेशन जो है और एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी के बीच में कुछ एंगल है विच इज नाइदर 0 नॉर 90 नॉर 180, मतलब कुछ एंगल है, तो अब क्या होता है कि अगर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के बीच में कुछ एंगल है ना, तो एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट हम यहाँ पे डिराइव कर सकते हैं। एक कंपोनेंट जो होगा वो वेलोसिटी के पैरेलल होगा और दूसरा कंपोनेंट जो है एक्सेलरेशन का वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। तो अब ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या कराएगा, डायरेक्शन को चेंज कराएगा, एंड वेलोसिटी के पैरेलल जो कंपोनेंट है वो क्या कराएगा, वो मैग्नीट्यूड भी चेंज कराएगा। तो अगर कुछ एंगल के साथ, दोनों के बीच में कुछ एंगल है वेलोसिटी, तो दोनों चेंज होंगे, डायरेक्शन भी चेंज होगा और उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा। तो ये दैट वाज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द 11th स्टैंडर्ड, व्हेन हाउ यू अप्लाई द एक्सेलरेशन and what kind of changes occurs in the object. So that was the fundamental. But यहाँ पे हम फंडामेंटल यूज करेंगे तो पता चलेगा कि भाई यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स है वो कैसे अप्लाई हो रहा है, तो वो तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ऐसा हुआ कि जो पार्टिकल है उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा,
पार्टिकल के वेलोसिटी का ओनली क्या चेंज होगा, उसका क्या चेंज होगा? डायरेक्शन। और है कोई मोशन आपके ध्यान में, ऐसे कोई मोशन ध्यान में है कि जिसमें यूसीएम। के हाँ पार्टिकल के मैग्नीट्यूड वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, खाली डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ऐसे कुछ मोशन है आपके ध्यान में? यूसीएम। हाँ, आपने एकदम बढ़िया बोला कि ऐसा इस टाइप का एक मोशन जो आपके ध्यान में है वो यूसीएम है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब मैं और एक चीज आपको बताऊं, ऐसा एक दूसरा मोशन भी पॉसिबल है। ऐसा दूसरा जो मोशन पॉसिबल है वो हेलिकल है। तो दो चीज हो सकती है, एक तो पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करे, ये हो सकता है, और दूसरा चीज ये हेलिकल मोशन करे पार्टिकल, ये भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे भी हेलिकल मोशन में भी डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, बट उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, इसके द्वारा आपको एक चीज कंफर्म्ड हुआ कि अगर कोई पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डालते हैं और कुछ मोशन में डालते हैं तो वो दो चीज कर सकता है। वो क्या कर सकता है? आइदर इट कैन परफॉर्म दी, बोलो कुछ तो बोलो, अब पूरा मैंने पूरा बता दिया आपको। अगर कोई चार्ज को मैं यूसीएम या तो हेलिकल मोशन। परफेक्ट, इसके द्वारा हम ऐसा कंक्लूजन डिराइव कर सकते हैं कि अगर कोई चार्ज को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डालते हैं कुछ मोशन के साथ, कुछ वेलोसिटी के साथ, तो वो दो चीज कर सकता है, या तो वो यूसीएम करेगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और या फिर वो क्या करेगा? हेलिकल। हेलिकल मोशन। तो ये दोनों दो चीज ही पॉसिबल हो सकती है। तो these are the basic characteristic of the these are the basic characteristic of the magnetic force। क्या ये चीज आपको समझ में आया फ्रेंड्स? यस सर। यस सर। इसके स्क्रीनशॉट मैं आपको ये जो फर्स्ट दैट आई गिव यू द स्क्रीनशॉट सो दैट यू गेट द आइडिया अबाउट द कंसेप्ट ऑफ द 11th स्टैंडर्ड। ओके, तो फ्रेंड्स वापस से हम आ जाते हैं अपने ओरिजिनल ट्रैक पे। सर और एक कंक्लूजन भी हो सकता है ना? बोलो क्या हो सकता है? मैग्नेटिक फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव। अच्छा, देखो ऐसी चीज है, मैग्नेटिक फोर्स जो है ना वो कंजर्वेटिव है, बट मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो नॉन कंजर्वेटिव है। मैग्नेटिक फोर्स कंजर्वेटिव है while मैग्नेटिक फील्ड इज अ नॉन कंजर्वेटिव। वैसे कंजर्वेटिव का बेसिक कंसेप्ट ऐसा होता है कि कोई फोर्स ऐसा है कि जो एनर्जी को डाइल्यूट करता है। तो ऐसा जो फोर्स है कि जो एनर्जी को डाइल्यूट करता है तो उसको नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं, जैसे जैसे फ्रिक्शनल फोर्स है। तो मैग्नेटिक फोर्स को हम कंजर्वेटिव नहीं कह सकते हैं, बट मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना वो क्लोज लूप फॉर्म करती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप फॉर्म करती है, एंड यहाँ पे एज अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म अ क्लोज लूप so that it is a non conservative field, we can say। तो मैंने एक बात आपको बोली, मैंने ऐसा बोला कि मैग्नेटिक फोर्स कंजर्वेटिव नहीं है, सॉरी मैग्नेटिक फोर्स कंजर्वेटिव है बट मैग्नेटिक फील्ड कंजर्वेटिव नहीं है, वो आप थोड़ा माइंड में रखना। ओके सर ये सेम केस इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा ना? मतलब कभी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन कंजर्वेटिव हो सकती है बट इलेक्ट्रिक फोर्स। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी नॉन कंजर्वेटिव नहीं होता है। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका नाम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसका नाम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, उसका नाम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, एंड दैट इज व्हाट इज द नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड द कंसेप्ट ऑफ द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड वी विल गोइंग टू डिस्कस इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसमें हम ये बात डिटेल में पढ़ेंगे। ओके ओके। तो सेवेंथ क्वेश्चन, राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स एंड डिस्कस इट्स फीचर्स, डिस्कस इट्स कैरेक्टरिस्टिक। तो वो सारे कैरेक्टरिस्टिक हमने यहाँ पे डिस्कस किया। उसका फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे मिलता है, उसका डायरेक्शन, यहाँ पे ये देखो ये राइट हैंड स्क्रू, राइट हैंड थंब रूल यहाँ पे दिखाया हुआ है, उसका डायरेक्शन कैसे मिलता है वो हमने डिस्कस किया। हमने ऐसा भी देखा कि कोई स्टेशनरी चार्ज है तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा,
thus only the moving charge feels the magnetic force, but the stationary charge does not. Is that clear, friends? चलो अब हम मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट का डेफिनेशन बनाएंगे. द यूनिट ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड इज अ टेस्ला. अब मैं 1 टेस्ला का डेफिनेशन बनाने वाला हूं. आई एम गोइंग टू डिफाइन 1 टेस्ला. 1 टेस्ला को अभी मैं डिफाइन करूंगा. सर ये निकोला टेस्ला के नाम पे रखा गया है. एग्जैक्टली सही बात है आपका, 100% ट्रू. वैसे टेस्ला है ना, वो आप क्वेश्चन पूछते हो तो मेरे कुछ आपको नॉलेज देने का इच्छा होता है. हाँ वो टेस्ला कॉइल वो सब. वो टेस्ला तो आपको पता नहीं है कि टेस्ला एंड एडिसन, थॉमस अल्वा एडिसन पता है आपको? हाँ सर. टेस्ला थॉमस अल्वा एडिसन से भी बहुत ही मतलब अच्छा साइंटिस्ट था. थॉमस अल्वा एडिसन ने जितने भी इन्वेंशन किए ना, तो उसके आधे इन्वेंशन में ये टेस्ला का हाथ है, ऐसा कह सकते हैं. एक्चुअली टेस्ला वाज वर्किंग विद द थॉमस अल्वा एडिसन इन हिज कंपनी. थॉमस अल्वा एडिसन एंड टेस्ला थॉमस अल्वा एडिसन वाज अ वेरी रिच पर्सन. उसके कंपनी में ये टेस्ला काम करता था और बहुत सारे इन्वेंशन में टेस्ला का हाथ है. बट उसका नाम कम आया बिकॉज ये टेस्ला, वो थॉमस अल्वा एडिसन का स्किल ज्यादा, मतलब ये प्रैक्टिकल स्किल और अप्रोचिंग स्किल उसका ज्यादा था एडिसन का. सो हम लोगों ने थॉमस अल्वा एडिसन का नाम बार बार सुना है, बट एक्चुअली उससे भी जेन्युइनली ये टेस्ला बहुत ज्यादा आगे था. फिर उसके बाद वो उसके कंपनी में से निकल के खुद का कंपनी उसने स्टार्ट किया और बहुत सारे अलग इन्वेंशन, मोर देन 276 उसने इन्वेंशन किए है ये टेस्ला ने भी. तो उसके बारे में बहुत सारे स्टोरीज है, बहुत सारे पिक्चर भी है. एक पिक्चर है, एक मैजिशियन का पिक्चर, बहुत बहुत ही मस्त पिक्चर था वो. कुछ 2 मैजिशियन आपस में टकराते हैं, मतलब कौन सा पिक्चर, बहुत ही अच्छा पिक्चर था वो. तो उसमें भी टेस्ला का मतलब पूरा आता है. आई गिव यू द नेम. सर हाँ बोलो सर अभी हाल बोलो बोलो. ફોન આવ્યો એટલે કશું તમે કીધું. શું કહો છો? શું કહો છો? कुछ कहते हो? ओके, नाउ कम टू द टॉपिक. तो आई वांट टू डिफाइन 1 टेस्ला. मुझे मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला को डिफाइन करना है. मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट होता है वो टेस्ला होता है. तो अगर मैं फोर्स को 1 न्यूटन ले लेता हूं, चार्ज को 1 कूलम ले लेता हूं, वेलोसिटी को 1 मीटर पर सेकंड ले लेता हूं एंड साइन 90 ले लेता हूं, तो क्या इसका रेशियो 1 मिल जाएगा मुझे? इज इट अंडरस्टूड? अगर फोर्स का वैल्यू 1 ले लेते हैं, चार्ज 1 लेते हैं, वेलोसिटी 1 ले लेते हैं, एंगल 90 ले लेते हैं, साइन 90 1 हो जाएगा, तो आंसर भी 1 हो जाएगा. इज इट ओके? Am I audible to you, friends? I am not hearing from your side anything. Yes, sir. સર Okay. तो मुझे 1 टेस्ला डिफाइन करना है. चलो कोई मुझे डेफिनेशन देगा इसके ऊपर से? इसके ऊपर से कोई डेफिनेशन देगा? ऐसा कह सकते हैं कि when 1 coulomb charge is moving with the velocity 1 meter per second perpendicular to the magnetic field, experiences 1 Newton force, then that magnetic field is defined to be a 1 Tesla. I repeat, when 1 coulomb charge moving with the velocity 1 meter per second perpendicularly to the magnetic field experiences the force of 1 Newton, then the magnetic field is defined to be a 1 Tesla. तो क्या ये आपको समझ में आया डेफिनेशन ऑफ द टेस्ला? Yes, sir. Is it okay, friends? Yes, sir.
तो यहाँ पे 1 टेस्ला का डेफिनेशन दिया हुआ है एंड आई कैन से 1 टेस्ला इज इक्वल्स टू 1, इसका यूनिट क्या होना चाहिए? तो 1 टेस्ला इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन अपॉन न्यूटन इंटू सेकेंड एंड कूलम इंटू मीटर। तो हम यहाँ पे टेस्ला इज इक्वल्स टू, हम ऐसा भी कह सकते हैं न्यूटन अपॉन कूलम पर सेकंड इनटू मीटर। पर क्या आपको ये पता है कि कूलम पर सेकंड एम्पियर होता है? तो 1 टेस्ला आई कैन आल्सो से इट इज अ न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर। तो न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर भी उसको कह सकते हैं। तो कैन यू डिराइव द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द टेस्ला? इसके ऊपर से आप टेस्ला का डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर्म कर सकते हो। न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर के हिसाब से क्या आप डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पे बना सकते हो? यस और नो? Yes, sir. Okay. So, friends, question number 8 is over. Question number 9. क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर से आपको MCQ पूछ सकते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं? 1 टेस्ला का अगर SQ एग्जाम में है तो 1 टेस्ला का डेफिनेशन पूछ सकते हैं। नंबर 2 आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला भी यहाँ पे पूछ सकते हैं। Tesla is the MKS unit of the magnetic field and the CGS unit is a Gauss, and 1 Gauss equals to 10 power 4 Tesla, vice versa 1 Tesla equals to 10 raised to power 1 Tesla is the MKS unit, 1 Tesla is equals to 10 raised to 4 Gauss. Gauss is the CGS unit of the magnetic field. Vice versa I can say 1 Gauss is equals to 10 raised to minus 4 Tesla. ऐसा भी हम कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज लॉरेंट्ज फोर्स एंड डिफाइन द लॉरेंट्ज फोर्स एंड राइट डाउन इट्स फॉर्मूला। तो फ्रेंड्स ये लॉरेंट्ज फोर्स कुछ भी नहीं है। अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के अंदर है, मतलब कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई किया गया है एंड मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई किया हुआ है, both the field simultaneously applied, electric and magnetic field both, then if there is a charge moving in that kind of situation, the charge is moving in this kind of situation, so that charge will experiences both the kind of force. अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों के अंदर है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा? QE लगेगा, एंड मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा? QV क्रॉस B लगेगा। तो इसका जो रिजल्टेंट फोर्स है, मतलब कि कंबाइंड फोर्स और रिजल्टेंट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फोर्स इज डिफाइंड एज अ लॉरेंट्ज फोर्स। ये जो कंबाइंड फोर्स जो है इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स का, उसको ही लॉरेंट्ज फोर्स बोलते हैं। एंड दिस इज व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द लॉरेंट्ज फोर्स। ये जो है वो लॉरेंट्ज फोर्स का फॉर्मूला है। Q कॉमन आई कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड E into V plus V cross B. So that is what is the formula of the Lorentz force. Is that clear to you friends? ये कंबाइंड जो है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का, उसको ही लॉरेंट्ज फोर्स बोलते हैं। तो क्या ये बात समझ में आया फ्रेंड्स? हाँ सर। ओके फ्रेंड्स? Yes. ओके। सो फ्रेंड्स आज का सेशन मैं यहाँ तक ले रहा हूँ। देखो ये चैप्टर मैं बोलता हूँ कि इसको मिस मत करो। ये चैप्टर ऐसा है कि अगर मेरे साथ साथ करोगे तो आराम से ये चैप्टर हो जाएगा, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे यहाँ पे। बट अगर आप लेक्चर स्किप करते हो, साथ में काम नहीं करोगे, तो दिस इज कम्स आउट टू बी अ डिफिकल्ट चैप्टर। तो डोंट मिस द लेक्चर, ऑलवेज अटेंड ऑल द लेक्चर एंड डू द होमवर्क साइमल्टेनियसली। आपका थर्ड चैप्टर का थर्सडे को एग्जाम है। अब ये फाइनली आपका थर्ड चैप्टर का एग्जाम है 100 मार्क्स का। चैप्टर नंबर 3 100 मार्क्स थर्सडे। तो वापस से हम मिलेंगे। आज का सेशन में यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। वापस से थर्सडे का लेक्चर, थर्सडे आपका लेक्चर भी है और आपका थर्ड चैप्टर का एग्जाम भी है। सो ऑन एवरी थर्सडे नाउ एंड ऑनवर्ड्स एज पर आवर शेड्यूल, now and onwards on every Thursday you will be having exams. On this Thursday you will be having a
third chapter full exam, and next Thursday you will be having a fourth chapter. जितना चलेगा उतना एग्जाम में नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट थर्सडे होगा. नेक्स्ट थर्सडे आपका अभी जो थर्सडे आ रहा है उसमें थर्ड चैप्टर का एग्जाम है. तो आज हमने डिस्कस किया 1 to 9 क्वेश्चन, और उसमें आपको लर्न बाय जो हार्ड करने हैं, लर्न बाय हार्ड करने वाले जो क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 9, ये 2 क्वेश्चन आपको लर्न बाय हार्ड करना है. बाकी सब आपके नॉलेज के लिए है, इंफॉर्मेशन के लिए है. 7th एंड 9th क्वेश्चन आपको लर्न बाय हार्ट करना है. तो नेक्स्ट ऑनवर्ड लेक्चर विल डिस्कस 10th एंड ऑनवर्ड्स क्वेश्चंस. ओके, अगर आपने बुक कलेक्ट नहीं किया है तो ऑफिस पे जाके बुक कलेक्ट कर लीजिएगा, और फीस अगर पे करना बाकी है तो फीस भी पे कर दीजिएगा. तो आज का सेशन मैं यहाँ तक खत्म कर रहा हूँ. ओके फ्रेंड्स. सर वो आप कुछ टेस्ला के रिलेटेड बोल रहे थे, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया. टेस्ला के बारे में बहुत सारे स्टोरीज है, बहुत सारे पिक्चर भी उसके बारे में आया हुआ है. एक्चुअल में टेस्ला जो है ना वो थॉमस अल्वा एडिसन के साथ काम करता था. थॉमस अल्वा एडिसन ने जितने भी इन्वेंशन किए हैं उसमें टेस्ला का बहुत बड़ा हाथ है. बट टेस्ला थोड़ा प्रैक्टिकल पर्सन नहीं था, और एडिसन जो था वो थोड़ा रिच भी था और प्रैक्टिकल भी था. तो वो सारे इन्वेंशन उसने खुद के नाम पे लगा दिए. थोड़े सालों के बाद टेस्ला ने थॉमस के साथ मतलब वो जो साथ था वो निकल गया, और उसने खुद का एक कंपनी उसके बाद थोड़े सालों के बाद उसने स्टार्ट किया. और टेस्ला के भी थॉमस अल्वा एडिसन के पास मोर देन 1000 इन्वेंशंस उसके रजिस्टर्ड है, और मोर देन 250 टेस्ला के पास भी 276 से ज्यादा उसके रजिस्टर्ड है, मतलब ये कॉपीराइट लिए हुए है. तो थोड़ा सर्च करना बहुत ही अच्छा है. थॉमस अल्वा एडिसन एंड टेस्ला के बीच में कुछ वॉर भी, मतलब एक इलेक्ट्रिक वॉर भी चल रहा था. इलेक्ट्रिक वॉर मतलब साइंटिफिक इलेक्ट्रिक वॉर चल रहा था इलेक्ट्रिसिटी के बारे में. तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है. आप पढ़ना, कहीं पे नेट पर मिले तो आप देखना, अच्छा है वो. ओके ओके सर. तो आज का सेशन मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ. थैंक यू.